ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ بھارت نے آج باضابطہ طور پر سنبھالی G20 کی صدارت۔ G20 کی صدارت دنیا کے ایک ہونے کے نظریے کو فروغ دینے کے لیے کرے گی کام: وزیر اعظم۔ بھارت عالمی سطح پر ایک مضبوط طاقت کے طور ابھر رہا ہے: وزیر خارجہ ایس جے شنکر۔ بینکوں اور محکموں کو آپسی تال میل کے ساتھ کام کرنے کی LG منوج سنہا کی ہدایت۔ صنعتی اداروں، نوجوانوں اور کسانوں کی مالی مشکلات کا لیا سنجیدہ نوٹس۔ اور BSF کی یوم تاسیس کے موقع پر BSF اہلکاروں اور ان کے کنبوں کو وزیر اعظم نے دی مبارکباد۔ یوم تاسیس کے سلسلے میں کئی تقاریب کا انعقاد۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کی G20 کی صدارت دنیا کے ایک ہونے کے نظریے کو فروغ دینے کے لیے کام کرے گی، لہذا بھارت کا موضوع ہے ایک کرۂ ارض، ایک کنبہ، ایک مستقبل۔ نریندر مودی نے کہا کہ محض ایک نعرہ نہیں بلکہ اس میں انسانی حالات میں حالیہ تبدیلیوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، جس پر ہم توجہ دینے میں اجتماعی طور پر ناکام رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے شہریوں سے بھی زور دے کر کہا کہ وہ بھارت کی G20 کی صدارت کو دکھوں کا مداوا، ہم آہنگی اور امید کی صدارت بنانے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ G20 کی صدارت کے دوران بھارت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے درپیش خطرے کو دور کرنے اور عالمی سلامتی میں اضافے کے بارے میں سب سے زیادہ طاقتور ملکوں کے درمیان مخلصانہ بات چیت کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت عالمی سطح پر ایک مضبوط طاقت کے طور ابھر رہا ہے اور عالمی سطح پر کئی اہم اور بڑے معاملات کے حل کے لیے نمایاں کاوشوں کا علم بردار بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی سطح پر ترقی، ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے تحفظ سے پہلے توانائی، خوراک اور کھادوں کی دستیابی جیسے معاملات کی حساسیت کو محسوس کر رہا ہے۔ وزیر موصوف آج بھارت کی طرف سے G20 کی صدارت سنبھالنے کے بعد نئی دلی میں ورچوئل طریقے سے منعقدہ یونیورسٹی کنیکٹ پروگرام میں خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت G20 کی صدارت ایسے موقع پر لے رہا ہے جب عالمی سطح پر کئی معاملات پیچیدہ بنے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی کنیکٹ پروگرام میں سینٹرل یونیورسٹی کشمیر نے بھی ورچوئل موڈ کے ذریعے شرکت کی۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے رجسٹرار نے DD نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ G20 بھارت کے لیے صرف ایک ڈپلومیٹک میٹنگ ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھارت کی صلاحیتوں پر اعتبار کی ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ یونیورسٹی کے کئی طلباء نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ G20 میں جو ہے بھارت کا جو ہے پریزیڈنسی شپ لے لینا، یہ ہمارے سب لوگوں کے لیے، سارے بھارتی واسیوں کے لیے جو ہے فخر کی بات ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کا مین تھیم ہے واسودیو کٹمبکم، اور جو آج کل جو اس کا تھیم لائن بنا دیا ہے، وہ بھی اس طرف کی اشارہ کر دیتے ہیں کہ ہم ایک زمین پہ ایک فیملی ہے اور ہمارا فیوچر ایک ہے۔ As a student of political science, I see it as a moment of pride, and I believe that India will make an impact on economic, political, environmental issues within and across the globe. یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے اور ایک بہت ہی اچھا فورم ہے جہاں پہ انڈیا جو ہے وہ اپنی ورتھ پروو کر سکتا ہے، اور انڈیا کین ریئلی میک این امپیکٹ تھرو دس فارم۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ اتنی جلدی پیسے ڈبل؟ جمع کرو گے تو پھر بھگتو گے، کیا لاؤ؟ ایسی لبھانے والی اسکیمز میں پیسے جمع کرنا یعنی دھوکے کا امکان، اس لیے پہلے پوری جانچ، اس کے بعد پیسے جمع، نہیں تو آپ کے پیسے ہو جائیں گے RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ G20 شیرپا امیتابھ کانت اور سابق مرکزی وزیر اور گاندھی سمرتی اور درشن سمیتی کے نائب چیئرمین وجے گوئل نے آج بھارت کی جانب سے G20 کے صدر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے موقع پر نئی دلی میں منڈی ہاؤس چوک میں G20 کے لوگوں کی نقاب کشائی کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے امیتابھ کانت نے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا اور کہا کہ بھارت کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ G20 عالمی GDP کے 85% اور دنیا کی 2/3 آبادی کا احاطہ کرتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں آج سول سیکریٹریٹ جموں میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں مالی اداروں، بینکوں اور سرکاری محکموں کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران LG نے بینکوں اور محکموں کو آپسی تال میل کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی تاکہ صنعتی اداروں، نوجوانوں اور کسانوں کو مالی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ LG نے مزید کہا کہ ہمیں مالی اداروں کو ہر ممکن طریقے سے فعال بنانا چاہیے تاکہ ان میں کوئی بھی شعبہ مالی طور کمزور نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان مالی اداروں کو مستحکم بنانا چاہیے جو ہمارے دیہی علاقوں کی اقتصادی حالت کو
मजबूत बनाने में अपना अहम रोल निभा रहे हैं। इससे पहले बैंकिंग सेक्टर और मुख्तलिफ महकमों के मामलात से मुतालिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश की गई। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, सनत और हिरफत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के अलावा इंतजामिया के कई आला अहदेदारों ने शिरकत की। सरहदी हिफाजती फोर्स BSF आज अपना यौम तासीस मना रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने BSF के एहलकारों और उनके कुंबों को मुबारकबाद पेश की। एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस फोर्स का मुल्क की हिफाजत और इसकी खिदमत करने में गैर मामूली कारकर्दगी का रिकॉर्ड रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो कुदरती आफात जैसी मुश्किल घड़ी में BSF के उम्दा कामों की तारीफ करते हैं। BSF की बुनियाद 1 दिसंबर 1965 को रखी गई थी। BSF भारत की हदूद में गैर कानूनी दाखिली और बाहर जाने पर रोक लगाने में अहम रोल अदा करती है और ये सरहद पर जराइम की रोकथाम करती है। BSF इस वक्त सरहदों की हिफाजत करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है। BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने BSF की यौम तासीस के मौके पर आज रियासी जम्मू में अमर जवान शौर्य स्थल का इफ्तिताह किया। उन्होंने परम पूज संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज पर भी हाजिरी दी। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए LG ने वीर नारियों और BSF के बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हुए मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानें कुर्बान करने वाले BSF जवानों को जबरदस्त खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी की कुल हम तरक्की LG इंतजामिया की अव्वली तरजीह है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर शहरी इज्जत और शान से रहे, इस तरह का माहौल कायम किया जा रहा है। LG ने कहा कि तरक्की और इस्तेकाम के लिए दीही इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की अशद जरूरत है। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने पिछले 3 सालों में तरक्की के कई मराहिल तय किए हैं और ये सफर जारी रहेगा ताकि समाज का हर फर्द एक बेहतर जिंदगी गुजार सके। फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF में आज यौम तासीस के मौके पर एक सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। तकरीब में वादी में तैनात BSF के आला अफसरां और एहलकारों ने शिरकत की। पिछले एक हफ्ते से इस ज़िम्न में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर BSF की तरफ से कई तकारीब का एहतमाम किया गया। इसके अलावा सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के मामलात का मदावा करने के हवाले से भी प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान जल जीवन मिशन के तहत कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में जल शक्ति महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जल जीवन मिशन के CEO और मुतल्लिका महकमे के चीफ इंजीनियरों और दीगर कई अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान से ताकीद की कि वो जारी कामों की तामीर में सूरत लाएं ताकि मुकर्रर मियाद के दौरान इनको मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड प्रोग्रामों के दौरान मुंतखबा कामों पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। उन्होंने महकमे के सीनियर अफसरान से तलकीन की कि वो बजात खुद इन कामों की निगरानी करें। उन्होंने पंचायती इदारों के नुमाइंदों से इन कामों के बारे में फीडबैक हासिल करने की भी हिदायत दी। मीटिंग में महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि पाइपें बिछाने से मुतालिक तकरीबन 328 कामों को अलॉट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत तकरीबन 70,000 घरों को पानी के कनेक्शन फराहम किए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि अलॉट किए गए 20,504 कामों में से 1,409 काम तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में हैं, जबकि 168 कामों को मुकम्मल किया गया है। आज एड्स बीमारी से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर कहा कि इस दिन हम ये अहद कर रहे हैं कि इस बीमारी के खात्मे के लिए हम कमर बस्ता हो जाएं। गवर्नमेंट PG कॉलेज फॉर विमेंस गांधीनगर जम्मू में इस दिन के हवाले से मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस बीमारी से मुतासिर अफराद को हर मुमकिन तिब्बी व दीगर सहूलियात फराहम करने की अगरचे सरकार वादाबंद है, तहम इन वादों को ज़मीनी सतह पर शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हमें यकजुट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से इस बीमारी से मुतासिर अफराद के लिए एक मुस्तहकम निज़ाम तैयार किया गया है ताकि इन अफराद को हर तरह की मुआवनत फराहम हो। प्रोग्राम में तलबा, शोबे सेहत से वाबस्ता एहलकारों, मुहक्किकीन और डॉक्टरों ने शिरकत की। एड्स बीमारी से बचाव के हवाले से श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भी एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। प्रोग्राम में जेक एड्स कंट्रोल सोसाइटी के असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज अहमद खान बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सोसाइटी की तश्कील से आज तक 5,896 ऐसे मरीजों का इलाज, मुआवजा और देखरेख की गई है। इनमें से 3,313 मरीजों का इस वक्त इलाज और मुआवजा जारी है। अलबत्ता अभी तक 1,232 ऐसे मरीज फौत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके मराकज़ में इस मर्ज के हवाले से मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं, जबकि सोसाइटी के हेल्पलाइन नंबर 1097 पर वो इस मर्ज के हवाले से हर तरह की जानकारी फराहम कर रहे हैं।
पुलिस ने सोशल मीडिया और कुछ दीगर प्लेटफॉर्मों पर इस अफवाह को कि पुलिस एहलकारों को पिछले 2 महीनों से तनख्वाह वागुजार नहीं की गई है को गलत करार दिया है। पुलिस जराये का कहना है कि पुलिस हेडक्वार्टर्स ने इसके हर यूनिट पर मुलाजिमों की तनख्वाह की वागुजारी के लिए फंड्स दस्तियाब रखे हैं। इसके अलावा NPS के तहत आने वाले मुलाजिमिन की भी तनख्वाहें वक्त पर वागुजार की जा रही हैं, इसलिए इस तरह की अफवाह बेबुनियाद है। बीजेपी की जानिब से आज द्रगमुला कुपवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने अपने खिताब में वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें और लोगों से अपील की कि वो आने वाले DDC इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। कन्वेंशन में पार्टी के सीनियर मेंबरान ने भी शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लोगों को दरपेश गुनागो मुश्किलात के अलावा रोजमर्रा की जरूरियात की अदम दस्तयाबी के खिलाफ नूराबाद कुलगाम में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत पार्टी की सीनियर लीडर और साबिक वजीर सकीना इत्तू कर रहे थे। इसके बाद एक वर्कर्स कन्वेंशन का भी इनेकाद हुआ। कन्वेंशन से खिताब करते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि हुक्मरान सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं, जबकि अवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिजली की बदतरीन सप्लाई के साथ साथ हर सू पीने के पानी और राशन की किल्लत से लोग परेशान हैं। PDF के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर में फौरी तौर असेंबली इंतखाब करवाने की जरूरत पर जोर दिया है, ताकि लोग अपने चुने हुए नुमाइंदों के जरिए अपने मसाइल को हल करवा सकें। हल्का इंतखाब खान साहिब के PDF वर्करों के एक इजलास में हकीम यासीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी व समाजी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में तब तक नुमायां बेहतरी नहीं लाई जा सकती है जब तक असेंबली इंतखाबात करवाए जाएं। PDF सरबराह ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मौसम सरमा के दौरान गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले कुंबों को मुफ्त बिजली फराहम करें। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने ज़ईफ, बेवाओं, तलाकशुदा ख़वातीन, जिस्मानी तौर ख़ास अफराद और ख्वाजा सराओं को दरपेश मुश्किलात और हालत ज़ार पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इन अफराद को सोशल वेलफेयर महकमे की तरफ से पेंशन फराहम होता है। अलबत्ता अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के चक्कर में उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त के मौसमी हालात में ऐसे अफराद को घंटों कतारों में बिठाना नाइंसाफी है। भारत मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।